Hello everyone. Today we are going to discuss how to differentiate a given function with respect to another function, and after that we will discuss how we should find derivative of a determinant. मीन्स इस सेक्शन में हम दो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं. पहला कि किस एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और सेकेंड थिंग हाउ वी शुड फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. सो लेट अस स्टार्ट. लेट वी हैव अ फंक्शन u f(x) and another function v, suppose gx. Then the derivative of u with respect to v is given as, when we write du by dv, it means simply du by dx upon dv by dx, means that is f dash x and this one is g dash x. मीन्स फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है तो फर्स्ट फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकेंड को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे. जैसा हमने पैरामीट्रिक डिफ्रेंशिएशन में किया था सेम हम उसी प्रोसेस को यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. Find derivative of log cos x with respect to under root cos x. ठीक है. Solution. Let u equals to log cos x and v equals to under root cos x. Now when we differentiate we get du by dx equals to 1 upon cos x into cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x. इस तरीके से करेंगे. एंड dv by dx we have 1 upon under root 2 under root cos x into minus sin x in this way. Okay, so hence can be written as minus sin x upon cos x whole divided by minus sin x upon 2 root cos x in this way. Okay, so as we observe these two minus should be the cancel out minus sign, and we have simply 1 upon 2 root cos x upon cos x. So when we again solve we have 2 under root cos x. Okay, so in this way we get the derivative of log cos x with respect to root cos x. Okay, now we take another question. Question है, if x lies between minus 1 upon root 3 and 1 upon root 3, differentiate tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square with respect to tan inverse 2x upon 1 minus x square. पहला फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन ये है. फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमें सेकेंड के रिस्पेक्ट में करना है. तो लेट u इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर in this way. Now let a substitution putting x इक्वल्स टू tan थीटा. हमने tan थीटा इसलिए सब्स्टिट्यूशन लिया है कि जब आप tan थीटा रखोगे
कि ये पूरा इन्वर्स फंक्शन एक सिंपल टर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला भी रिड्यूस हो जाएगा, ये वाला भी रिड्यूस हो जाएगा। तो u इक्वल्स टू, नाउ वी हैव tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, एंड we have tan इनवर्स 2 tan theta upon 1 minus tan square theta in this way. ठीक है, तो u equals to, now this becomes, this whole is the formula for the tan 3 theta. So we should write it as tan inverse tan 3 theta, and we have tan inverse 2 tan theta upon 1 minus tan theta square is the formula of tan 2 theta. So in place of this we should write it as tan 2 theta. Now u, as it is given here, x lies between minus 1 by root 3 and 1 by root 3. So this tan inverse and tan together with give you only 3 theta, and we have 2 theta. Now we should replace the value of theta from this result. So you can write it as 3 tan inverse x, and we have 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये u और ये वाला v। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इट गिव्स यू du बाई dx इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन है। और dv बाई dx जो आएगा आपका, आप देख सकते हो, इट गिव्स यू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों को हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब रिजल्ट देख रहे हैं क्या आता है। देयरफॉर du बाई dv हमने बताया था, सबसे पहले हम du बाई dx लिखेंगे, फिर नीचे dv बाई dx लिखेंगे। दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू आई 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड वाले की आई है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैंसिल कर देंगे। सो फाइनली वी गेट 3/2, that is your answer. Means differentiation of this function with respect to that is your 3/2. तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो जैसे हमने पैरामीट्रिक में किया था सेम प्रोसेस फॉलो करके हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। एक नया टॉपिक हम और आज लेने वाले हैं, जो कि हम उसमें पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द हाउ वी शुड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखने वाले हैं। लेट अ डिटर्मिनेंट डेल्टा एक्स इज रिटन एज एफ एक्स जी एक्स यू एक्स वी एक्स। ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सपोज करो वी हैव। देन डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एक्स इज गिवन एज डेल्टा डैश एक्स लिख सकते हैं, दैट इज द डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वो हम लिखने चल रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स यू एक्स वी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने 2 ऑर्डर का लिया है, तो 2 रो 2 कॉलम्स हैं, तो डेरिवेटिव में क्या करना है हमें, 1 रो फिर अनदर रो का करना है। अगर आप कॉलम को लेके फॉलो कर रहे हो तो पहले फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव करना है, दूसरे को एज इट इज़ रखना है, फिर दूसरे का डेरिवेटिव करना है, और फर्स्ट का एज इट इज़ रखना है। ऐसे करते हैं। तो दैट गिव्स यू, सपोज रो को फॉलो कर रहे हैं तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स हो जाएगा, और ये यू एक्स और ये वी एक्स हो जाएगा। प्लस ऐसे ही हम फर्स्ट रो को
एज इट इज़ लिख रहे हैं और सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू डैश एक्स और ये वी डैश एक्स हो जाएगा। इस तरीके से या तो हम रो को फॉलो करेंगे या पूरी चीज़ को हम कॉलम से भी कर सकते हैं। डेल्टा डैश एक्स अगर किसी ने कॉलम को फॉलो किया है तो फर्स्ट कॉलम को सपोज करो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स यू डैश एक्स एंड इट शुड बी द जी एक्स एंड हियर शुड बी द वी एक्स। और दूसरे में भी ऐसे करना है, एफ एक्स जी यू एक्स और ये जी डैश एक्स और वी डैश एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेरिवेटिव किसी भी डिटर्मिनेंट का आइदर यूजिंग रो और यूजिंग कॉलम कर सकते हैं। तो हायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसमें भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ। ठीक है, here this determinant is of order 3, so we have 3 rows and 3 columns. Either you should proceed by taking row or by column. So now we are taking row, so dy by dx becomes, if we differentiate first row then it simply gives f dash x, here g dash x, here h dash x, and these two rows should be as it is. And in next we have to write first as it is and differentiate second row में तीनों कांस्टेंट है एलिमेंट, so it gives you 0 and here a b c, and if we differentiate now write fx gx hx and here is l m n 0 0 0। इस तरीके से हमने इसमें थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ये पूरा डिटर्मिनेंट f डैश x g डैश x और h डैश x आ रहा है और ये l m n a b c, और ये तीनों एंट्रीज किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 0 आ जाता है तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। ये हमने पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ रखा है। तो पूरे का डिफ्रेंशिएशन जो होने जा रहा है, ये दोनों 0 हो चुके हैं, तो वी हैव f डैश x g डैश x h डैश x and here l m n and next is a b c, that is your answer। ओके, इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। जिस भी ऑर्डर का दिया होगा आपको ध्यान रखना है, आइदर यू शुड प्रोसीड बाय टेकिंग रो और बाय कॉलम। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल। तो डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। हम रो या कॉलम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो सपोज करिए कि हम कॉलम वाइज करने जा रहे हैं, तो एफ डैश एक्स जब करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का होगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ए बी आएगा, ये एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी एंड हियर इज द ए सी बी सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड कॉलम को कर देते हैं, 0 आ जाएगा, ये आपका 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर का 0 हो जाएगा और ये बी सी फिर से 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ए सी आएगा, यहाँ पे बी सी आएगा और यहाँ पे एक्स प्लस सी स्क्वायर आएगा। थर्ड कॉलम को जब हम करेंगे तो एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी एंड हियर ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर एंड बी सी एंड इट शुड बी द 0 0 एंड हियर शुड बी द 1 प्लस 0, सी स्क्वायर का 0 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 रो एंट्रीज 0 आ जाएंगी, इसलिए 1 से हम स्प्लिट करने जा रहे हैं। तो 1 से स्प्लिट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट जो बचेगा उसको लिख रहे हैं, एक्स प्लस बी स्क्वायर बचेगा, बी सी बचेगा, बी सी बचेगा, एक्स प्लस सी स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही इसमें भी
इस 1 के अकॉर्डिंग हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि दो एंट्री 0 हैं तो आपका वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 जब लेंगे तो x प्लस ए स्क्वायर और इधर ए सी आएगा, इधर ए सी आएगा, इधर x प्लस सी स्क्वायर आएगा। ऐसे ही लास्ट एंट्री 1 से स्प्लिट करेंगे, सो इट शुड बी द x प्लस ए स्क्वायर ए बी एंड हियर शुड बी द ए बी एंड x प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीनों डिटर्मिनेंट को हमने स्प्लिट कर दिया तो ये वैल्यू आ रही है। अब ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है तो 2 क्रॉस 2 को स्प्लिट करना हमने बताया था आपको। x प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट x प्लस सी स्क्वायर बनेगा माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा x प्लस ए स्क्वायर x प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस इसमें भी ऐसे करेंगे x प्लस ए स्क्वायर एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट x प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम करने क्या जा रहे हैं, इस ब्रैकेट को स्प्लिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या आ रहा है। तो इसको जब स्प्लिट करेंगे आप तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपना था ही। इसको भी ऐसे स्प्लिट कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स एंड लास्ट वन इज योर x times a square plus b square. So when we add, we have 3x square plus x times, here it becomes a square b square plus c square plus a square plus c square plus a square plus b square. So finally what we are getting, if you observe, they give 2 times, so 3x square plus 2 times x into a square b square plus c square. In this way we get the answer. तो इसमें 2a square है, 2b square भी है, 2c square है, so we take 2 कॉमन। तो डिटर्मिनेंट का कहीं भी डिफ्रेंशिएशन करने को आएगा, या तो आप रो वाइज उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए या कॉलम वाइज डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इस टाइप से आप डेरिवेटिव ऑफ ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज जो मैंने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।